I am a spiritual teacher, artist, entrepreneur, and author, right? So in this video, I'm talking about some of the different way of our life and mind, right? So in this video, I'm talking about energy and power of awareness, right? Awareness is a openness in your mind, right? Openness in your mind. So in this video, human being is a amazing creature on this planet, amazing creature, right? This is a very high end, intelligent creature on this planet. I'm saying first video, I'm telling you, in this planet, different type of species, right? Different type of species, lot of species, fish, animal, insects, lot of species. But human being is an amazing species, right? He is a highly intelligent and he is developed uh, in a mind, in a imaginations, right? So this is an incredible, right? This is incredible, right? Human being is an amazing creature, right? So first, you remember, always remember, always saying your mind. Next video is the next videos. I'm telling you self-talk and intuitions and inner talk, right? My inner voice, right? Healing power and lot of type of explain our life and self-help and um, our energy, our power. Human beings power, right? Human beings are amazing creature. Really, I experience, right? I have a lot of powers. I have a self-talk, right? I have intuitions. I have a inner inside gift, right? Inside, right? Human beings is a two different type of world. First inside, second outside, right? Outside world is the our mirror, right? Our mirror. First life create inside, and this is a reflection outside. Simple, right? So in this video, I'm telling you, first you remember, everything is created in this planet and in this universe. Everything is created is a electromagnetic energy, waves, particles, waves, vibrations, right? Right? I'm recording and my voice, and you listen this point. This is what? Vibrations. This is waves. Listen deeply. What I am telling you, and I explain you, right? I explain, in this planet all is energy. We are energy, right? Nothing is create your life. Nothing. You are a creator of your life. You are it. Correct? I think maybe you not wait for a die, right? I think, right? You are a very special human beings. Right? Every human being is a highly genius, highly intelligent, right? So first my topic is a power of energy, right? In this planet and this whole universe, everything is energy. Everything is energy. Everything is electromagnetic waves, particles, individual healings energy, and electromagnetic energy, waves, and I'm saying particles, right? And actions and instant movement, right? This is a outer of our planet, but inside planet, uh, inside planet are different, different, only one energy, gravity, right? Because we are only live this planet only gravity, सिर्फ राइट हम इस प्लानिट पर ओनली ग्रेविटी की वजह से इससे चिपके हुए हैं। बहुत ही जरूरी है अंडरस्टैंड करना, राइट? बिकॉज वी कैन नॉट फ्लोट, राइट? सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस of life, right? Everything is energy, right? Your breathing is energy, right? Your eating food is energy. Your thinking process, this is energy.
This is just an electromagnetic energy. Mind create a powerful frequency, right? Right? Scientists are already explain human mind create theta waves, right? And beta waves and alpha waves, right? But my personal experience, really, human mind is a powerful developed electromagnetic energy. What electromagnetic energy? Same of this planet and this universal energy, right? से जैसे हमारा सन एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेज कर रहा है, राइट? ये अर्थ भी एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेज कर रहा है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। ये एक ओनली एक स्टोन है, एक बहुत बड़ा, बट इस स्टोन का मैजिक क्या है? ये स्टोन में ग्रेविटी निकल रहा है, एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रेविटी, ऐसा पावर जो न्यूटन ने एंड आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने आकर्षण का अट्रैक्शन नियम, राइट? इट्स अ पावर ऑफ ग्रेविटी, राइट? So everything is created is a vibration forms, everything, right? I am saying first you understand and remember, everything is created first in the mind and then in reality, right? And you remember, कुछ भी इस planet के बाहर से नहीं आया है, right? सब लोगों ने अपना सोर्स, अपनी एनर्जी, बिकॉज हर एनर्जी को एक सोर्स की जरूरत है, हर एनर्जी को, राइट? माई थिंकिंग प्रोसेस, राइट? समटाइम आई विश, बट एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं विश कर रहा हूँ या मैं प्रे कर रहा हूँ, सो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ओनली अपने माइंड से ही बोल रहा हूँ। सिंपल है, मैं सिर्फ अपने माइंड से ही बोल रहा हूँ। एवरी टाइम आई प्रेइंग, आई एम सेइंग माय माइंड, राइट? बिकॉज वी आर क्रिएट आवर लाइफ, दिस इज अ पावर ऑफ एनर्जी, right? Everything is energy form this planet, everything is energy, right? My thinking process is energy, my thought process is energy, right? Because sometime of after 1000 and 2000 year ago, humans they are not understand this power and this energy. They understand holy fuck, this is a magic, right? उनके लिए ये मैजिक था, ये सारी चीजें हैं मैजिक वर्ड, कि जो भी विश मांगो सारी पूरी हो रही हैं। ये कैसे? दिस इज अ पावर ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी को ना तो देखा जा सकता है, एनर्जी एक इन्फिनिटी एनर्जी है, राइट? ये एक एनर्जी है जो हम अपनी लाइफ को डेवलप कर रहे हैं। बट हमें क्या है? हमें एक सोर्स चाहिए। ह्यूमन बींग्स को आई एग्री, ह्यूमन बींग्स को एक सोर्स चाहिए। सोर्स क्या? बिलीफ, वो होना चाहिए, राइट? So this is so I explain only this is an energy, right? Only this is an energy, right? Some of the religious human beings, they saying the God is no physical form, but ना जैसे बोला है, ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ ये एनर्जी है, ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है, राइट? नेविल गोडार्ड ने भी यही चीज़ बोला है, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने भी यही चीज़ बोला है। बट यह है क्या? मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, राइट? So this is a very interesting topic, right? So first I explain, since first thing क्या है? हमारी माइंड में सबसे पावरफुल है, एक वेव्स निकलती है, एक फ्रिक्वेंसी, राइट? वो फ्रिक्वेंसी क्या है? वो फ्रिक्वेंसी हमारे थिंकिंग प्रोसेस, हमारे थॉट प्रोसेस, दिस इज अ एनर्जी, राइट? दिस इज अ एनर्जी, ह्यूमन इमेजिनेशन, दिस इज अ एनर्जी, राइट? एवरी टाइम आई एम सेइंग, मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया ह्यूमन बींग्स की सेल्फ पावर क्या क्या है, जो हमारे अंदर एज अ ह्यूमन बींग्स हैं। फर्स्ट अवेयरनेस, मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। फर्स्ट अवेयरनेस, सेकंड इमेजिनेशंस, थर्ड इंट्यूशंस, अंदर की आवाज़, फोर्थ सेल्फ टॉक, राइट? फाइव अकॉर्डिंग टू मी, राइट? फीलिंग्स, राइट? फीलिंग्स व्हाट? तो सम ऑफ द टाइम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, राइट? कोई ह्यूमन बींग्स अगर जैसे किसी चीज़ पर बिलीव कर रहा है, राइट? क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन कब किया? मैंने जब देखा ना यार, सब प्लैनेट पर वी आर ऑल ओनली वन स्पीसीज, राइट? ओनली वन स्पीसीज। हमारा एकदम सिंपल वर्क है, सेम प्रोसेस है। क्या है? एनर्जी, ओनली एनर्जी, राइट? ये बॉडी क्या है? ये बॉडी एक एनर्जी है। दिस इज नॉट अ सॉलिड,
वन टाइम दिस इज एंड, राइट, एक दिन ये इसका एक टाइम पीरियड है, राइट, इसका एक टाइम पीरियड है, दिस इज अ एनर्जी, दिस इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन, दिस इज अ पावरफुल बॉडी, दिस इज अ एनर्जी, राइट, बिकॉज दिस इज क्रिएट माई लाइफ, राइट। इस बॉडी को क्या जरूरत है, इस बॉडी को फीड की जरूरत है, इस बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है, इस बॉडी को फूड की जरूरत है, परफेक्ट फूड, राइट। बट इस बॉडी के अंदर कोई भी पार्ट सेपरेट नहीं है, हर पूरी बॉडी में मूवमेंट है 24 आवर, बॉडी के अंदर 24 आवर मूवमेंट, ब्लड सेल्स, हार्ट, लंग्स, माइंड, आइज, वॉइस, ब्रीथिंग, एवरीथिंग, इवन स्किन, राइट। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिमिलर ऑफ द यूनिवर्सल प्रोसेस, राइट। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, हमारी लाइफ ओनली प्रोसेस वर्क करना है, सेम ऑफ द यूनिवर्सल प्रोसेस, राइट, सेम प्रोसेस है लाइफ का। अब मैं जो एक्सप्लेन जो बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। हमारा हार्ट एक एनर्जी रेस करता है, हमारा माइंड, बट ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ी बात क्या है, ह्यूमन माइंड कैसा है, ह्यूमन माइंड मैंने जैसे बताया, ह्यूमन माइंड को सोर्स की जरूरत है, वो सोर्स, और वो सोर्स आप किसी गॉड को मानो या किसी भी चीज़ को मानो, पर वो सोर्स होनी चाहिए। बट आई एम सेइंग दिस इज अ फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग टॉपिक, ये सोर्स आपको अंडरस्टैंड करना होगा, ये हमारे माइंड ही है, ओनली हमारा माइंड। कुछ फॉलो करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, जस्ट बिलीव योर माइंड, बट सेइंग एवरी सिंगल डे योर माइंड, राइट। दिस आई एग्जाम्पल डीपली, आई डीप एग्जाम्पल, राइट। सो मैंने एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल भी लिया है। मैंने क्या किया, मैंने एक चैप्टर्स में एक चैप्टर लिया एक बुक का, राइट, एक रिलीजियस बुक का, मैंने उसमें सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ नेम चेंज किए, राइट, जैसे बुद्धा का, अल्लाह का, जीसस का, इनका, राइट। बट हुआ क्या, मेरा माइंड जो इंफॉर्मेशन ले रहा है बट वो वही जान रहा है, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ माइंड, दिस इज अ एनर्जी, दिस इज अ एनर्जी, राइट। मेरा माइंड सिर्फ रिकॉर्ड करता है, दिस इज अ एनर्जी, ये बिलीव करता है जो वो सुनता है, जो वो देखता है, सिंपल। बट हमारा लाइफ वर्क कर रहा है ओनली फॉर आवर बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम हार्ट, बिलीफ सिस्टम इज अ this is my point of view, feelings, right. Belief system is just a include is feelings, right. मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, सिंपल वर्ड में इजीली ये है कि बिलीफ सिस्टम एक्चुअली है क्या। जैसे आप सम ऑफ द टाइम मैंने ये चीज़ बोला है, एवरीथिंग ओनली सिर्फ इस प्लानिट पर सिर्फ एक एनर्जी है। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने एंड नेवल गोडार्ड ने एंड इवन नेपोलियन हिल ने 1937 में ये एक्सप्लेन किया था। 1937 में नेपोलियन हिल ने, नेपोलियन का एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, राइट, वो बुक नेपोलियन हिल ने कार्नेगी को दी है, कार्नेगी ने थर्ड बॉब प्रॉक्टर को दी। उस बुक में उन्होंने क्या बोला, उन वर्ड को मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोला है, हर रिलीजियस बुक क्या बोलती है, मुझे फॉलो करो, राइट, यू एग्री, हर रिलीजियस बुक ये बोलती है मुझे फॉलो करो। बट नेपोलियन, नेवल गोडार्ड एंड न्यूटन एंड आइंस्टाइन एंड आई एम, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये बताना चाहते हैं आप कौन हो, you understand who you are, you don't know you। इसका मैं सिंपल एक बहुत अच्छा डेमो देता हूँ। फर्स्ट डे आप मिरर के सामने जाओ, राइट, मिरर के सामने जाके खुद से यही सवाल करें, मैं आखिर कौन हूँ, मैं क्यों हूँ इस प्लेनेट पर, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। सिर्फ मिरर के सामने यही सवाल करें, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे खुद से। कैसे, राइट। सो मैं यही बोल रहा हूँ कि सारी पावर हमारे अंदर है। नेपोलियन ने क्या बोला है, नेपोलियन ने हमारे ब्रेन के बारे में, सेवन सेंस के बारे में, हमारी फीलिंग्स के बारे में, हमारे थॉट्स थिंकिंग प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो मैंने जाना है, राइट। टुडे मैंने भी सारी चीज़ें वही, जब मैंने देखा ना, इन सब का कहने का मीनिंग है, नेवल गोडार्ड का कहने का मीनिंग, न्यूटन इज अ साइंटिस्ट, बट उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा इस प्लैनेट पर एक एनर्जी है,
टाइम, प्लेस एंड ग्रेविटी। ये है इस प्लैनेट परसेप्शन, जो कि हर रिलीजियस ह्यूमन बीइंग से किसी से भी पूछो, उनको उस टाइम पे ये चीज़ें पता ही नहीं थी। उनको क्या सोर्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो देखा मैजिक, मैं जानता हूँ तो सीन क्या होता है, हमें सोर्स की क्यों ज़रूरत है उसका भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सब पता है मेरे जब हमें रील्स को रीड करने का, इनको जानने का रीज़न क्या रहता है, सब कुछ अच्छा हो, राइट, हमारी डिजायर्स पूरी हो, सारी खुशियाँ हो। ये तो ऑलरेडी हमारे इनसाइड पावर है, बिकॉज इस प्लैनेट पर एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। सिंपल है, सिंपल। एक मैंने ये डेमो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल निकाल के रखा हुआ था, तो explain the exhibit of it. You see, this is I explain. ये है, ये हमारा यूनिवर्स है, राइट। ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा प्लैनेट है, राइट। ये चारों तरफ एक एनर्जी है, इसके चारों तरफ मून भी घूम रहा है, राइट। ये एक सन भी है, राइट। सो जस्ट सी, राइट। तो ये एक एनर्जी क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जिसमें चारों तरफ घूम रहे हैं, राइट। अब ये हम आते हैं अर्थ के अंदर, राइट। ये हमारा अर्थ है जिसके अंदर हम हैं। ये भी अपने आप से काफ़ी लाइट, काफ़ी एनर्जी रेज कर रहा है, काफ़ी लाइट, काफ़ी एनर्जी, राइट। आई एक्सप्लेन, राइट, स्टेप बाय स्टेप। एंड जिस चीज़ अब मैं इस प्लैनेट पर एक सोर्स लेता हूँ चारों, राइट। मैं आपको एनर्जी बता रहा हूँ, ये ओनली एक लाइट, एक एनर्जी रेज कर रहा है, जिसने चारों तरफ अपने एक बॉल बना के रखा हुआ है, सिंपल एक बॉल, एक एनर्जी का बॉल, राइट, जिसके अंदर ग्रेविटी है। इसके बाहर ह्यूमंस जी नहीं पाएगा, कोई भी स्पीसीज नहीं जी सकती है, बिकॉज इसके बाहर ना ऑक्सीजन है, ना ग्रेविटी है एंड ना कुछ है। तो हमें ये अंडरस्टैंड सबसे पहले बाहर से करना होगा, फिर मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर आऊँगा, राइट। सो इस प्लैनेट पर ग्रेविटी है, एनर्जी है, सब कुछ है। मैं बताना चाह रहा हूँ जो कुछ भी है वो हम ही है, हमें इंफॉर्मेशन गलत दी गई है, राइट। हम एक पावरफुल ह्यूमन बींग्स हैं, एवरी सिंगल ह्यूमन बींग्स, राइट, बिकॉज एवरी सिंगल ह्यूमन बींग्स इज अ जीनियस, इंटेलिजेंट, सेम एनर्जी, राइट। किसी भी रिलीजियस या किसी भी लीडर्स में, रिलीजियस लीडर है, सबको लीडर बनने का आदत है ह्यूमन बींग्स को। सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम सेइंग फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, आई एम पावर ऑफ अवेयरनेस, राइट। सो ये लाइट रेस कर रहा है एंड अब मेरा एक कोई सोर्स है, मैंने जैसे ये फर्स्ट सोर्स हमारा है, एक गॉड हो गए, राइट, या अल्लाह, ये बुद्धा, ये जीसस, ये हमारे टाइम कोई भी गॉड है, एनीथिंग, राइट। हमने सोर्स दिया फॉर एक ह्यूमन बींग्स ने, ह्यूमन बींग्स है, राइट। एक ह्यूमन बींग्स ने इस सोर्स से बोला, सी एक ह्यूमन बींग्स ने अपनी डिज़ायर्स बोली, एक सोर्स से। अब ये एक प्लैनेट के अंदर एनर्जी है, जो वो सोर्स से बोल रहा है वो रिटर्न आएगा। दिस इज अ सिंपल, जैसी फीलिंग्स लोगे, बट मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे वर्क करता है ये, राइट। तो ये ध्यान से सुनो, उसने कुछ विश किया या कुछ प्रे किया, गया, रिटर्न आया, राइट। दिस इज अ सोर्स ऑफ, यू बिलीव एवरी रिलीजियस लीडर, गॉड, इज़राइल, अल्लाह, बुद्धा, जो भी है, राइट। ये मैंने सबको एक्सप्लेन किया, इन सबका सोर्स एक एनर्जी, एक ये रहा, राइट। सो ये है। एंड सेकंड, एक ह्यूमन बींग्स जो इन सब चीज़ों को नहीं बिलीव करता, जिसको अपनी सेल्फ पावर बताए, एक्चुअली मैं कौन हूँ, ये जो जिन पावर को बता रहा है वो तो मेरे इनसाइड ही है। वो क्या, वो एवरी टाइम सेइंग अपर माइंड, एवरी टाइम, ये रहा। इनमें डिफरेंस क्या होगा, ये प्रे करके और जस्ट बिलीव कर रहा है इस सोर्स पर, राइट। ये सिंपल वर्क है। सेकंड ह्यूमन बींग्स, इसका भी सेम है, इसने कोई थिंकिंग लिया, कोई बिलीव लिया, बट ये बिलीव कर रहा है अपने माइंड पर। सो इनके पास पावर क्या है, इस ह्यूमन बींग्स के पास पावर है इमेजिनेशन की, फीलिंग्स की, राइट, एंड इंट्यूशंस की, एंड सेल्फ टॉक की, राइट। ये पावर एज अ ह्यूमन बींग्स है, जो कि इन्होंने कभी बताई नहीं थी। किसी भी रिलीजियस ह्यूमन बींग, किसी भी रिलीजियस कोई भी लीडर्स हो, राइट, इवन कोई भी हो, राइट, ज्यूस हो या मोहम्मद हो या बुद्धा हो, इनको सीक्रेट पता था, इन सबको सीक्रेट पता था। ये सीक्रेट है क्या, इन सबको सीक्रेट पता था, बट उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद को एक बहुत बड़ा ह्यूमन बींग्स बनाने के लिए ऐसा किया। ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस आने वाले टाइम में, बिकॉज ये चेंजिंग क्यों जरूरी है, ये आने वाली जनरेशन के लिए ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले इस चीज़ के बारे में और अवेयर हो। अगर ह्यूमन बींग्स इस चीज़ को लेकर अवेयर है ना, तो लाइफ ब्यूटीफुल, बिकॉज आपको फिर कुछ करना ही नहीं है, आपको बस अपने आप पर, अपनी इमेजिनेशंस पर, अपने माइंड पर एंड अपने इंट्यूशंस पर
You are a creator of your life, right? You have a beautiful feelings, right? Because in this planet everything is vibrations, everything is energy, right? तुम्हारे ह्यूमन बींग्स के पास, आप लोगों के पास, सबके पास पावर है ह्यूमन बींग्स के पास इमेजिनेशन क्रिएट करने की. एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, मनी इज वाइब्रेशन, right? Car is vibration, car is vibration, everything is vibration because you are create already in your mind. Everything is vibrations. So नीड नहीं है किसी चीज़ की. जैसे मैं हूँ, मैं फर्स्ट एक मैं वो ह्यूमन बींग से जो मैं किसी रिलीजियस चीज़ पर बिलीव करता हूँ, राइट? सो मैंने क्या किया, मैंने प्रे किया एंड बिलीव किया एंड मैं खुद गया क्योंकि मुझे खुद को पता ही नहीं है. मुझे बस ये पता है मेरे अंदर डर क्यों है. अगर मैंने कुछ गलती की तो ये चीज़ मेरी पूरी नहीं होगी. दिस आर नेगेटिव इमोशंस. एंड सेकेंड, ह्यूमन बींग्स मैं ही हूँ. मैं बिलीव करता हूँ अपने माइंड पर, अपनी पावर्स को जानता हूँ ह्यूमन बींग्स, जो कि मुझे ये बताया ही नहीं है. उन्होंने क्या बताया? फॉलो करो, सिर्फ फॉलो करो, सिर्फ फॉलो करो. जस्ट उन्होंने ये नहीं बताया हु यू आर. यू आर अ पावरफुल ह्यूमन बींग्स, यू हैव अ पावरफुल इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन. क्यों? क्योंकि उनको ये सीक्रेट पता था और ये सीक्रेट कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया. सो ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स इज अ हाईली, मैंने बोला ना, फियर से भरा हुआ माइंड्स में. एक बार अगर डर बैठ गया तो वो ह्यूमन बींग्स का उसी डर में जीने की आदत रहती है. मैंने बोला ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में सिर्फ फ़र्क इतना है, ह्यूमन बींग्स अपना इन्वायरमेंट बना के रहता है, एनिमल्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहते हैं. दोनों में बहुत फ़र्क है. मैंने क्या कहा, समझा? एनिमल्स क्या करता है, इन्वायरमेंट जैसा है वैसा रहेगा. ह्यूमन बींग्स क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा. आपको यहाँ एक और सीक्रेट बताता हूँ ह्यूमन बींग्स का, ह्यूमन बींग्स के नेचर का. ह्यूमन बींग्स की सबसे अच्छी बात क्या है, हमें पहले हमेशा से क्या सिखाया गया है, जैसा इन्वायरमेंट है ना वैसा हमें बनाता है. इन्वायरमेंट हमें बनाता है. मैंने भी हमेशा से यही सुना है, जैसा इन्वायरमेंट है वही हमें बनाता है. दिस इज रॉन्ग, राइट? हम इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं. फर्स्ट अगर मैं अपने इनसाइड वर्ल्ड को चेंज कर दूँ ना, इनसाइड इन्वायरमेंट को, ऑटोमेटिकली मेरे आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली चेंज. बैड पीपल्स, बैड थिंग्स, राइट? रिलीजियस थिंग्स, रिलीजियस पीपल्स ऑलरेडी चेंज. ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर सोचो ना, एक बच्चे को बचपन से सिर्फ ये बताया जाए आप कौन हो, आपके पास पावर क्या है, आपके पास कितनी अच्छी ब्यूटीफुल पावर्स हैं, आप इस लाइफ पर एक स्पेसिफिक गिफ्ट हो, लोगों को यहाँ गिफ्ट देने के लिए आए हो. सो उसके माइंड में कितना ब्यूटीफुल सीड पैदा होगा. वो जान पाएगा मैं कौन हूँ. क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है. अगर बचपन से ही इंफॉर्मेशन ही गलत दी जाए तो उसके अंदर तो यही लगेगा ना कि बड़ा होना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर मर जाना है, राइट? दिस इज नॉट अ लाइफ, राइट? दिस इज नॉट अ लाइफ. आई थिंक सब जरूरी है लाइफ में, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हु यू आर, राइट? आई नो I am who I am, right? I am an artist, entrepreneur, and spiritual teachers, and motivational speakers and author, right? मैं जानता हूँ मैं क्यों हूँ, right? मैं लोगों को अवेयर करने के लिए हूँ. मैं जानता हूँ मैं एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन बीइंग्स हूँ, क्योंकि मैं अपने इनसाइड टैलेंट, इनसाइड एनर्जी पर फोकस करता हूँ, जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर गिफ्ट है. बिकॉज आई एम अ पावरफुल क्रिएटर, राइट? सो इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन. सो मैंने बताया, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैंने देखा है, मेंशन किया हुआ है. देखो यहाँ पर ह्यूमन माइंड के अंदर थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, राइट, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ये हमारी पावर्स है, राइट? ये हमारी एनर्जी है. सो ये डिफरेंट है नॉर्मल पीपल में और एक पावरफुल ह्यूमन बींग्स में, जो खुद को जानते हैं. खुद को जानने वाले को पता होगा हमारे माइंड में थॉट्स क्या चल रहा है, फीलिंग्स क्या चल रही हैं, हमारा इमेजिनेशन क्या है. बट जो इन सब चीज़ों पर बिलीव करेगा वो क्या करेगा, अपने माइंड में सिर्फ इस सोर्स पर बिलीव करेगा, जबकि यही सोर्स यहाँ भी वर्क कर रहा है. ये सोर्स यहाँ भी वर्क कर रहा है. देखो ये सोर्स यहाँ भी वर्क कर रहा है. सोर्स सेम है. उसने कुछ मांगा है बट उसने अपने माइंड से बोला है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बचपन से सिखाया गया कुछ भी मांगना है इस सोर्स से मांगो. जो सोर्स मैंने इस प्लैनेट पर आउटसाइड दिया है, कोई नहीं है इस प्लैनेट पर, सिर्फ एक एनर्जी है. एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. जो है, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वो एनर्जी को रिटर्न आना होता है. दिस इज द एनर्जी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड, राइट, व्हाट आई एम सेइंग. सो
राइट। So in this video देखो, this is my second I explain this video, right। देखो, this is a religious human beings, right। इसके माइंड में, इसके पास बिलीव क्या है, ये सारी चीज़ें जो सोर्स बताया गया है, जो भी है, गॉड है, अल्लाह है, बुद्ध है, जीसस है, जो बताया गया है, क्योंकि उनको सीक्रेट बताया ही नहीं है कौन है सेकंड ह्यूमन बींग्स। वो क्यों कूल है? क्योंकि उसको पता है आखिर हम कौन है, हमारी पावर्स क्या है, हमारे पास पावर है इमेजिनेशन की। ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपनी माइंड से बोलूँगा, डेली प्रिपरेशन करूँगा, सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास हैं। इट्स अ पावर ऑफ माइंड। ये लाइफ से फ्री है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं कौन हूँ, राइट। सो लाइफ कितनी ईजी है, ना फॉलो ना कुछ, बस लाइफ को यहाँ एक ब्यूटीफुल लाइफ जीना है, बस ओपननेस, फ्रीडम। और ये बाउंड्रीज में बना हुआ है, सिर्फ इतने में ही रहना है। दिस इज अ डिफरेंट, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक सोर्स एनर्जी है, ये सोर्स एनर्जी, राइट। आई एक्सप्लेन दिस टारगेट। सो एंड सेकेंड, everything is energy, right। And second, I explain power of awareness, right। What is awareness, right? Awareness is open your mind, right। Open your mind क्या? Open your mind what? Open your mind meaning I am saying your mind is a very beautiful garden, right। This is aware some default mood, right। If you feeling happy, the feelings return happy because this is a great electromagnetic energy, right। Once you release your mind, religious thinking, you are a very free and you are a very very interesting of life। because जब आप सामने ह्यूमन बींग्स को देखोगे अगर को, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा उनको देखकर कि यार हम एक ह्यूमन बींग्स हैं सर, राइट। सो दिस इज अ पावर ऑफ माइंड, राइट। लाइक मेरी लाइफ में मेरी सक्सेस, मेरी पावर्स का रीजन है मैं अपने इनसाइड पावर को जानता हूँ, जो मेरे इनसाइड है, जो मेरे अंदर गिफ्ट है। आई नो आई एम ऑलरेडी रिच, राइट। आई एम ऑलरेडी वेल्दी ह्यूमन बीइंग्स, राइट। दिस इज माई पावर बिकॉज आई हैव अ ब्यूटीफुल माइंड, राइट। मनी इज व्हाट? मनी इज ओनली इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज अ वाइब्रेशंस, राइट। पता है आज से 20 ईयर्स पहले 2000 ईयर पे, वो 1000 ईयर पहले लोगों को, जैसे जो रिलीजियस ह्यूमन बींग्स हैं, इन लोगों को, जो ये लोग ऑलरेडी एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से थे, तो इनको तो कुछ करना नहीं है। बट जो नॉर्मल पीपल थे, जिनको ये नहीं पता आखिर हम कौन है, उनको लाइफ कैसी लगती थी? सुबह जाना, शाम को आना, दिन भर काम करना एंड काम करके पैसे लेके आना, घर चलाना। उनके माइंड में सिर्फ यही थिंकिंग थी और माइंड यही सेट था, यही प्रोग्राम है। ये जनरेशन टू जनरेशन चली आ रही है, राइट। बट एक डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट, जो मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है। दिस इज नॉट अ लाइफ, बिकॉज आपको एनर्जी का पता ही नहीं है आप कौन हो। आपके पास पावर इमेजिनेशन की है। लाइफ को चेंज करना है, सबसे पहले माइंड को चेंज करना होगा, राइट। मनी इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मनी इज अ वाइब्रेशंस, राइट। सो आई एक्सप्लेन इज अ मनी वैल्यू। मनी इज वैल्यू नॉट अ यू जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे मैंने बताया पहले, यू लोगों को नहीं पता था सुबह से शाम तक काम करना, पैसे जोड़ना। मनी का वैल्यू यू नहीं है पैसों को जोड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, लाइफ पर काम करना चाहिए। मनी का वैल्यू है आपको मनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है, राइट। एवरी सिंगल टाइम मनी की वैल्यू इंक्रीज करनी है, अपनी नहीं, राइट। यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग्स, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिव, राइट। और ज़्यादा काम और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने माइंड में, अपने माइंड का एक पर्सपेक्टिव, अपने माइंड का एक विजन चेंज करना है और मनी की वैल्यू को इंक्रीज करना है। अंडरस्टैंड? आई एक्सप्लेन, दिस इज अ हाईली डीप टॉपिक। सो आई एम नेक्स्ट वीडियो एंड बाकी वीडियो में ये एक्सप्लेन करूँगा पूरा इस चीज़ का। सो फर्स्ट आई पावर ऑफ फॉरगिवनेस, राइट। पावर ऑफ अवेयरनेस, राइट। अवेयरनेस इज ओपन योर माइंड, राइट। अवेयरनेस क्यों जरूरी है? अवेयरनेस बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स कैसा, ह्यूमन बीइंग को मैंने बोला है, ह्यूमन बीइंग्स इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट है ना, वो सेम अपनी लाइफ को उसी तरह समझ के वही जी के
जीता रहता है ह्यूमन बींग्स, राइट। दिस इज अ पावर ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस क्यों जरूरी है? अवेयरनेस मतलब ह्यूमन बींग्स को अवेयर करने का जरूरत है, माइंड को ओपन करने का जरूरत है, क्योंकि एवरी सिंगल ह्यूमन बींग्स का माइंड इन्फिनिटी इंटेलिजेंस है, इन्फिनिटी है इस यूनिवर्स की तरह, राइट। इस यूनिवर्स की तरह इन्फिनिटी माइंड है। तो अवेयर कब होता है? बचपन में ही अवेयर होता है, राइट। और वो बचपन में हम क्या करते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन भर देते हैं माइंड में, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। सो अवेयरनेस का इसलिए जरूरत है। अवेयरनेस इज अ ओपन योर माइंड, राइट। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर। ह्यूमन बींग्स हमारे पास ये इन्फिनिटी इंटेलिजेंट है, यूनिवर्स की तरह इन्फिनिटी, कुछ भी इमेजिनेशन कुछ भी क्रिएट कर सकता है। सो इसलिए जरूरत है पावर ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस हु यू आर, राइट। व्हाट इज द मीनिंग लाइफ ऑन अर्थ? दिस इज अ, जिस ये क्वेश्चन करो अपने आप से, ये बहुत इफेक्टिव है, राइट। अवेयरनेस क्यों जरूरी है ह्यूमन बींग्स को? ह्यूमन बींग्स को सबसे पहले अपने माइंड को ओपन करने का जरूरत है। आखिर मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। सो इसलिए माई बुक इज ह्यूमन अवेयरनेस। जो मैं अपना बुक पब्लिश करना मैं अपना बुक लिख रहा हूँ, वो है ह्यूमन अवेयरनेस, राइट। ह्यूमन को अवेयर करना। सो आई थिंक आई एक्सप्लेन अ वेरी सम इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो okay, and bye and good night and take care. Bye. Bye. And always remember what? We are all one species, human, and we are live on the planet, and everything is created energy, only energy form, right? Everything is energy. This light is energy, body is energy, everything is energy. My thinking process is energy, right? We are all energy because I am energy. Always remember, everything is created electromagnetic energy, waves, particles in this planet, in this universe, right? So every time, everything, and every day, remember. Bye. Take care.